Woodrow Wilson article of study administration was published that was the political science quarterly, who among the following advocated initiative principle of administration, that was Henry Fayol ने कहा था principle of administration. Which one of the following not correct? Relation of new public administration, value neutrality approach, that was not in new public administration. So neutrality वाली approach नहीं है. Which is following are correct regarding the thrust area of new public management? Maximum government is not given. It is downsizing, minimum state and new ways of delivering service. In order to address the difficulties due to lack of coordination among the governmental institution, third Minerva Conference Network Society की बात की थी. That was a new concept. Public administration is benefited by easy availability of new tool, and the e-governance has become acceptable form in contemporary government, not only because it is cost efficient but also transparent. So both are explaining each other. According to the Taylor, which one of the following not quality of good foreman, that was competent is not quality of the good foreman. Manual dexterity, tact and judgment is there. Now next one is नेक्स्ट वन इज़ जॉर्ज फेडरिक्सन जो हैं, इन्होंने दिया था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और निग्रो ने कहा था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. विक्टर थॉमसन ने मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, और पीटर ब्लाउ जो है इन्होंने दिया था ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी. वो अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेट मैक्स वेबर बुक विंडशील्ड गेट शॉल्ट इनटू द इंग्लिश, दैट वाज द एडवर्ड शिल एंड द फिंच. क्रोनोलॉजिकली बताना है तो सबसे पहले है फर्स्ट इंक्वायरी, देन है ग्रेट एलिमिनेशन, देन है ह्यूमन सेंटिमेंट, देन है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट में है एब्सेंटिज्म. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लोजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट टू वेबरियन ब्यूरोक्रेसी, दैट वाज बोथ कंसर्न मोर ऑर्गेनाइजेशन. Which of the following was state the improved management style, that was high concern for people and the high concern for result. The concept with the object of the organization, that was the line agency. The expert in their area, that was the technical agency. Prevent the executive from the taking hasty decision, that was the staff agency. And the responsible housekeeping, and that was the auxiliary agency. So next one is the success of development program depends on the greater extent upon the effective functioning of the field establishment. ये क्वेश्चन पीछे आया था. सो एक्चुअली दोनों एक्सप्लेन कर रहे थे, वो बाद में देखते हैं वापस से. ठीक है. डायरेक्ट अथॉरिटी कौन सी होती है? जो कि अनब्रोकन लाइन होता है, डायरेक्ट होगा. डिलीगेटेड अथॉरिटी का मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल एजेंसी बिटवीन इशू एंड द एजेंसी, डिलीगेटेड हो गया. नाउ फंक्शनल अथॉरिटी कौन सी होती है? इंट्रिंसिक बाय द स्पेसिफिक नॉलेज, एंड द पर्सनल अथॉरिटी जो होता है इकोनॉमी. Which is the following leadership theory was the leader born not met, that is a trait theory. Arrange the following book chronologically about the publication. So यहाँ पे आएगा, सबसे पहले आएगा पॉलिसी बाय द पॉल एपलबी, देन उसके बाद में आएगा मोटिवेशन, देन उसके बाद में आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और वर्क नेचर ऑफ द मैन बाय हर्जबर्ग विल बी द लास्ट. Now who is the following given the concept of knowledge worker? Knowledge worker was given by Peter Drucker. The idea of the employee is responsible only one supervisor, that was unity of command. And Douglas McGregor ने कहा था successful manager are born or made, that was given by the McGregor. Dwight Waldo ने दिया था the administrative state, and Douglas McGregor ने दिया था leadership and motivation, and George Gant ने दिया था development administration, and Nicholas Henry ने दिया था public administration and public affair. Which of the following not included the conceptual approach? So that was conceptual approach, that was bureaucratic system approach is not in conceptual approach. So यहाँ पर कहा गया कि कौन सा conceptual approach नहीं है. So wait a minute. तो ये है क्वेश्चन नंबर 22, एंड 22 में है बी एक्चुअली, सॉरी इट इज़ नॉट ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच. सो विच इज़ फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड द कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, दैट इज़ द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, है ना. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 की बात चल रही थी.
that is human approach. Human relation approach is not the conceptual approach. Okay, which is the following model is based on synthesis of concept, general system theory, communication and cybernetics, energy conversation. So this about 23 है ना, 23 का आंसर आ जाएगा बी अगेन, दैट इज इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल जो है इसमें कहा गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. So that is information energy model. The practice of USA by which one or more senator attempt to delay or block a vote. तो अगर डिले हो रहा है दैट मीन्स द फिलीबस्टरिंग. फिलीबस्टर का मतलब होता है डिले होना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रिक्स के बारे में क्या इनकरेक्ट है. सो ही इंट्रोड्यूस द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन इन सेकेंड डायमेंशन. So that is incorrect. Who is the following is the ISRO certified the Sevotam model. So Sevotam model जो था that is second ARC 12th report of the administration. Which of the following oldest model of the corporation of the world. So 27 का आंसर आ जाएगा D. That was Madras Chennai India. Which of the following correct characteristics of the development administration. So 28 का आंसर आ जाएगा B. So A, B and D. The structure orientation is actually not there. Client orientation is there. So this is about the development administration. So development administration की अगर बात करें तो 28 इक्वल्स टू B है इसका आंसर वैसे, लेकिन इसमें एक्शन ओरिएंटेशन है, स्ट्रक्चर है, टाइम है, बट क्लाइंट ओरिएंटेशन इसमें नहीं होता है. ठीक है, बट ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है तो इसका आंसर बी है वैसे. तो बी के अकॉर्डिंग ये क्लाइंट ओरिएंटेशन में जाएगा, फिर बी टाइम ओरिएंटेशन है और एक्शन ओरिएंटेशन है, बट स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट. ओके, स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन नहीं है. द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज इकोलॉजिकल इन नेचर एंड द आउटकम ऑफ डेवलपमेंट आर द कंडीशंस बाय द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर. दैट इज़ ट्रू. द एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कंसर्न विद किससे रिलेटेड है. That is about 30 का आंसर B. Modernizing the bureaucracy, that is the administrative development concern with. Now next one is the Satish Chandra Committee on the Civil Service and एंड BN युगांधर जो थे इन्होंने दिया था कमेटी ऑन द रिक्रूटमेंट पॉलिसी के बारे में बताया था, और सतीश VK अलग ने कमेटी ऑन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिया था. ठीक है, एंड ये सारा हो गया. नाउ इसका आंसर था 3, 1, 4 एंड 2. सो सतीश चंद्र का आंसर 1 था एंड फर्स्ट वाले का आंसर था 3. तो ये देख लेंगे अपन बाद में. द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. सो दैट इज एक्चुअली ट्रू. एन अप्रूवल ऑफ द मनी बिल बाय द राज्यसभा इन द इफेक्ट ओनली फॉर्मल एंड रूटीन प्रोसेस. सो ओनली फॉर्मल एंड द रूटीन प्रोसेस दैट इज गिवन इन द राज्यसभा. सो दैट इज 48, क्वेश्चन नंबर 48 and that is C. Question number 48 is there. This is 52, this is 51, 50 and 49. Sorry, question number 49 and 49 का आंसर है D. D का मतलब है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो ओनली फॉर्मल एंड रूटीन प्रोसेस होता है बट प्रेसिडेंट नहीं. मनी बिल तो स्पीकर जो होता है उसके बाद में वो पास होता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम पीरियड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड है. सो दैट इज़ 15 से 20 तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ फॉर द 14th फाइनेंस कमीशन. ठीक है, 14 फाइनेंस कमीशन करेक्ट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनियन नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2013 का जो एजेंडा था. सो दैट इज़ अबाउट 51. क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसका आंसर है A. दैट इज़ द एजेंडा इज़ द ब्रॉड इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट दैट एक्ट द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा. ओके, एंड इसमें जो लास्ट D है रोल ऑफ द ग्लोबल सिविल सोसाइटीज सिग्निफिकेंट. सो ग्लोबल सिविल सोसाइटी का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ पर है नेशनल रिजोल्यूशन बनाया गया है. ठीक है, and not a distinguish between the developing and develop. Okay, now next is which of the following committee is introduced in the performance budget. तो performance budget जो लाया गया था that was 52 का C फर्स्ट ARC के अकॉर्डिंग. ठीक है, फर्स्ट ARC जो है
इन्होंने सबसे पहले परफॉर्मेंस बजट की बात किया था. ओके, दैट इज अबाउट द फर्स्ट ARC, नॉट सेकेंड ARC. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द विस्टल ब्लोअर. अगर हम विस्टल ब्लोअर की बात करते हैं, दैट मीन्स द टर्म पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड इन द हायर जुडिशरी. सो दैट इज़ नॉट ट्रू. सो 53 जो है इसका आंसर है B, C and D. But the term public service include in the higher judiciary, that is not true. Which of the following principle of budgeting. Budgeting के क्या क्या principles है. So यहाँ पर है A, B and D. Estimates on the revenue basis, that is not the principle of budgeting. But balanced होना चाहिए, comprehensive होना चाहिए और rule of lapse भी होना चाहिए इसमें. ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर. तो यहाँ पर है सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द फ्रीडम ऑफ प्रेस. दैट इज स्वीडन. द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सेलेक्ट द करेक्ट. केक के बारे में, हिज सैलरी डिटरमाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये रॉन्ग है, एक्चुअली पार्लियामेंट डिसाइड करता है इसको. बाकी 148 में है, इट टेक द ओथ अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट करता है रिपोर्ट. किसको देता है रिपोर्ट? तो 33 में, सॉरी 33 है ना. सो 33 में ये रिपोर्ट किसको देता है? 33 में ये रिपोर्ट देता है अपना 323 के अंतर्गत. सो 323 के अंतर्गत ये अपनी रिपोर्ट देता है. ठीक है. एंड नाउ मैच करना था अपने को. इंडियन रेवेन्यू सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है? तो 34 का आंसर है अपना D, वो है नागपुर में. ऑल इंडिया जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला है वो है मुंबई में. रेलवे वाला जो है दैट इज़ अबाउट द वडोदरा एंड रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद. नाउ योगिंदर अलग कमेटी है, रामान स्वामी है, सतीश चंद्रा और सुरेंद्र नाथ कमेटी. ये सभी जो है गवर्नमेंट इंडिया के अंदर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सिविल सोसाइटी की बताते हैं. विच इज़ फॉलोइंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. तो 102 और 191. विच आर फॉलोइंग नॉट द डायमेंशन ऑफ ओवरलैपिंग, दैट इज इंटीग्रेशन इज नॉट डायमेंशन. Which one of the incorrect regarding the objective of development administration maintaining status quo? So that is not true about that. Which is the following defines sustainable development that meets the needs of the without compromising the ability? So that is 39 है ना. 39 में हम देखेंगे कि हम देखेंगे 39 में. ओके, सो यहाँ पे है ब्रिटेनलैंड कमीशन दैट वाज रिपोर्टेड. ब्रिटेनलैंड कमीशन आया था. सो दैट वाज रिपोर्ट ऑफ और कॉमन फ्यूचर. नाउ PMO के बारे में बताना है हमें. तो PMO जो है इट इज़ अ लाइन एजेंसी है क्या PMO? सो दैट इज़ नॉट लाइन. इट फ्यू अटैच एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं क्या PMO में? सो हमें पता है कि ना तो इसके कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं, ना ये लाइन एजेंसी है, स्टाफ एजेंसी है. और एज ए डिपार्टमेंट की तरह स्टेटस है इसका. इट हैज़ रिप्लेस बाय PMS. दैट इज़ ट्रू एक्चुअली बिफोर दैट. Which of the following article of Constitution India is related to the distribution of legislative power between union and state? That was 245 and 255. Now, which is not included in the 7-point program, the setting up police complaint authority. So that was not under the this program Supreme Court के अंदर ना. Which is following is India spend highest percentage of the state budget. तो कहाँ पर? नागालैंड में सबसे ज़्यादा बजट स्पेंड किया जाता है. अकॉर्डिंग टू द 14 रिपोर्ट ऑफ दिस फॉलोइंग इज ए कोर प्रिंसिपल जो है फाइनेंस कमीशन का. Focus on results, adopt the modern financial system, budgeting to realistic and transparency. Who among the following made the description about the collector during this as a? That was O'Malley. And Central Vigilance Commission is a that was statutory body. Central Vigilance Commission क्या है? ये एक statutory body है. ठीक है. Now that was 2 year. The second Admin Reform Commission was recommendation of the tenure of secretary. That was 2 year. नाउ सतीश चंद्र जो है ये इन्होंने दिया था. अब क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें तो C आ रहा है ना. तो सतीश चंद्रा जो है अभी ये कर लेंगे बाद में क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि पीछे से वो क्वेश्चन कट गया है ना. तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं 49 पे. दैट इज़ द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन इफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द. तो क्वेश्चन नंबर 49 पार्लियामेंट
प्रेसिडेंट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड फिक्स बाय इम्प्लीमेंटिंग 14 फाइनेंस कमेटी रिपोर्ट, 15 से 20 हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा, तो एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है ना, दैट इज इन द एजेंडा ऑफ द एग्रीमेंट, इसमें ABC आएगा। द रोल ऑफ द सिविल सोसाइटी सिग्निफिकेंटली रेस्ट्रिक्टेड, दैट इज नॉट ट्रू। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिकमेंड अंडर परफॉर्मेंस बजट, तो फर्स्ट ARC ने इसको रिकमेंड किया था, ठीक है। नाउ 53 में B आएगा, इट प्रोहिबिट द पर्सन टू रिपोर्ट एनी करप्ट एक्ट, ठीक है। तो 53 का B है कि जो विसल ब्लोअर है, जो करप्ट एक्ट होता है उसको वो प्रोहिबिट करेगा, ठीक। नाउ जो 53 है उसका आंसर B है, B, C and D. The term of public servants included the higher judiciary, so that is actually not the part of that. So B आंसर है इसका, तो the term public servant include the higher judiciary, that is not true. Which of the following principle of budgeting, तो ये बैलेंस है, कॉम्प्रहेंसिव रूल ऑफ लेफ्ट है, बट रेवेन्यू बेस वाली कोई बात इसमें नहीं की गई है। सो 54 का आंसर एक्चुअली C है कि A, B and D। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, जिसका आंसर D है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है पुटिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट अबाव पर्सनल इंटरेस्ट, और ऑनेस्टी का मतलब होता है ट्रुथफुलनेस, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है एडवाइज द डिसीजन एंड बेस्ड ऑन द राइगोरस एनालिसिस, एंड इम्पेरिटी का मतलब होता है दैट वाज एक्टिंग सोलेली अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द service. Now who is the following is the attempt to the human mind of the find a correction between the ideas and word of phenomena, that was the Einstein and Infield ने बोला था। which of the following is not a महारत्ना company, so 57 का आंसर है C, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। the following government policy towards a sector enterprises is a new economical policy, that was 58 का आ जाएगा B, A, B and D. So welcoming the private foreign technology, that is not part of in that. Okay, now which of the following is the provide the protection against the extraneous factor, protection against the extraneous factor, so that was the principle of randomization. Okay, which is the following incorrect about the interview method, so 60 का आंसर आ जाएगा, that will be the D, the possible interview method, so 60th का आंसर क्या आ जाएगा D, the possible to ignore the effect of the equations, so that was okay. Now read the following statement and correct characteristics of usage for the using code, so 61 का आंसर आ जाएगा D, A, B and D. Happy should be grandioscope, that is not part of the public sector undertaking was, and that was as a given, so it was नवरत्ना में 25,000 की बात की गई थी। Now next question is about which of the following not of the scientific method, तो वैल्यू ओरिएंटेशन कभी भी साइंटिफिक मेथड नहीं होता। कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स ट्रेनिंग इन सिविल सर्विस, सो इम्पार्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फोस्टर द एटीट्यूड ऑफ वैल्यूज, डेवलप द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड डेवलप द स्पिरिट द कॉर्प्स। क्रोनोलॉजिकली बताना है हमें, सबसे पहले रीथिंक करना है, फिर रेस्पॉन्सिव, फिर रेजिलियंट, फिर क्रिएटिंग शेयर्ड फ्यूचर। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया, दैट वाज अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर कमीचर जो है वो KP गीता कृष्णम, एंड नाउ कमिटी ऑन द रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, दैट वाज मालीमत, एंड सेकेंड ARC। ओके, नाउ नेक्स्ट 67 का आंसर क्या आ जाएगा, सो 67 का आंसर आ जाएगा अपने पास सेकेंड कमीशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की अगर बात करें, सो दैट वाज सेकेंड पे कमीशन, दैट वाज माथुर, एंड द सेकेंड कमीशन जो था अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, दैट वाज MM पुंछी। ओके, नीति आयोग जो है 14 to 17, ये पूरा जो टर्म है, इट इज़ अबाउट द एजेंडा ऑफ द कन्वर्टिंग पॉलिसी चेंज and program. Which of the following was correct regarding the submit the matter of Ministry of Social Justice and Empowerment, so it was scheduled caste and the differentiable people। एक तो शेड्यूल कास्ट है और डिफरेक्टेड, एंड ट्राइब्स एंड माइनॉरिटीज़ में नहीं आएंगे, ठीक।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सर्विस टैक्स नहीं आएगा, स्टेट सेल है, सेल्स टैक्स है, एंट्री टैक्स है, सर्विस टैक्स इसका पार्ट नहीं था। अब विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस आर लिस्टेड इनपुट ऑफ ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो देखो, क्वालिटी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, प्री स्कूल एजुकेशन चाहिए और फाइनेंशियल कमिटमेंट चाहिए। ना एलाइट मॉडल जो है विटमिल का है, ग्रुप मॉडल जो है ऑर्थर बेंटली का, इंस्टीट्यूशनल मॉडल फेडरेशन ने दिया था, एंड ऑर्गेनाइजेशन एनआरची मॉडल तो किंगडम का है। ठीक है, सो इंस्टीट्यूशनल मॉडल जो था दैट वाज गिवन बाय द फ्रेडरिच। ठीक है, फ्रेडरिच का था। एंड ग्रुप मॉडल जो है वो किसका है, बेंटली का है, इसको हम कहते हैं ग्रुप मॉडल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशिंग एनजीओ। एनजीओ को महाराष्ट्र में दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अबाउट द एनजीओ इन महाराष्ट्र। नाउ द एलाइट मॉडल जो है ना, इसमें बताया गया है कि पॉलिसी ओरिजिनेटेड, इम्प्लीमेंटेड, री इम्प्लीमेंटेड, री एडजस्टेड, एंड दैट इज़ अबाउट द एलाइट मॉडल। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो 97 अमेंडमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है दैट इज़ गिवन द 97 अमेंडमेंट, विच इज़ पॉलिसी मेड डिज़ाइन ऑन द मैक्सिमाइज द नेट अचीवमेंट दैट वाज इंक्रीमेंटल। द नगर पंचायत की अगर हम बात करें, दैट वाज द ट्रांजिशनल एरिया फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। द पब्लिक पॉलिसी इज प्रपोज बाय द कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज इंडिविजुअल्स आर कंसिस्टेंट फॉलो, and the policy is instrument for the society regulate attempt to the channeling the human behavior. अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले रॉयल कमीशन आएगा, उसके बाद में रिपन आएगा, फिर आएगा मॉन्टेस्क्यू, फिर आएगा मेयो कमीशन, फिर लास्ट में फोकस करना है ऑर्गेनाइजेशन का क्या चार्ट है, डिस्क्राइब करना है क्या रिपोर्टिंग से, टेक द कंसिडरेशन एंड नाउ लीविंग लिंकेज बिटवीन द ब्यूरो एंड द इम्पोर्टेंट। नाउ द पब्लिक पॉलिसी आउटकम ऑफ द स्ट्रगल ऑफ गवर्नमेंट ओवर हु गेट्स व्हाट, दैट वाज द कोचरैन ने ऐसा बोला था। विच इज़ फॉलोइंग नॉट कवर्ड द फर्स्ट फेज, दैट वाज द हिमाचल प्रदेश is not covered in the first phase. Now consider the following about the schedule of constitute the selectly correct. So सबसे पहले public distribution system है, फिर prevention of cruelty animal in non conventional energy and the library. Which is following not correctly regarding about the प्रधानमंत्री आवास योजना. So 84 का आंसर आ जाएगा A, aims of providing the पक्का house with the basic amenities. So that is okay. बट 84 में जो है ए जो है दिस इज वॉज लॉन्च इन 2016, सो दैट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली. विच इज़ फॉलोइंग नॉट कंस्ट्रेंट फेस बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी इन इंडिया, सो एडिकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन, सो दैट इज़ नॉट द कंस्ट्रेंट. मतलब आप एडिकेट रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो वुमेन को, वो कंस्ट्रेंट कैसे हो सकता है. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होते हैं, एन एरिया हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख और मोर, दैट इज़ द मेट्रोपॉलिटन एरिया को हम कहते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉमिस द इंश्योर द हेल्दी लाइव्स एंड द प्रमोट द वेलबींग ऑफ द ओल्ड एज, दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल. विच इज फॉलोइंग इज द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड ARC 6 रिपोर्ट. तो ये जो 6 रिपोर्ट है, DRDA शुड बी वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, दैट इज द 6 रिपोर्ट. स्टेट प्लानिंग बोर्ड की बात की गई थी DRDO ने. ठीक है. तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसमें हमने सब्सटेंशियल शेयर ऑफ द रॉयल्टी फ्रॉम मिनरल कन्वर्टेड स्टेट को दिए गए हैं, तो 6 रिपोर्ट में ही दिए हैं हमने इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट ऑफ पब्लिक प्राइवेट, दैट वाज टेलीकॉम इज द डोमिनेंट सेक्टर, ओके, इन द पब्लिक एंड प्राइवेट. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 90 and that was roads actually, not the telecom. So which is about dominant of PPP model, but that is roads, not the telecom. Sorry, it is road. The constitution of local body ombudsman जब लाया गया था, it is about the second ARC ने इसकी रिकमेंडेशन की थी. ठीक है, सेकेंड ARC. कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. तो 92 का आ जाएगा A. इट इज़ वॉज लॉन्च इन द 2000 दिसंबर 25 को. तो यहाँ पर A है इसका आंसर. और यहाँ पर योजना में 100% स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंटीग्रेटेड प्रोवाइड द ऑल वेदर रूरल कनेक्टिविटी एंड हैबिटेटेड मोर देन 500 हिली एंड डिजर्ट एरिया. तो
क्वेश्चन नंबर 96 जो है यहाँ पर ए, बी और सी इसका आंसर है, बट इट इंडियन टू ऑल वेदर कनेक्टिविटी दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस। GVK राव कमेटी जो है पंचायत इंस्टीट्यूशन वाज अपॉइंटेड 1985 में, इसको अपॉइंट किया गया था। सो तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है दैट इज़ अबाउट रिलेटेड टू द GVK राव कमेटी। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है इससे रिलेटेड होती है ये, ठीक है, GVK राव कमेटी। और नेक्स्ट क्या है, हायरार्की का मतलब होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, स्पैन ऑफ कंट्रोल का नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कंट्रोल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में सिंक्रोनाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड में सबऑर्डिनेट सबमिट गेट ऑर्डर फ्रॉम द इमीडिएट बॉस। ठीक, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में मतलब जुडिशरी का पार्ट नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा पीछे, एक मिनट दिखाती हूँ। तो ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द एलिमेंट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवी डाइसी के अकॉर्डिंग, जुडिशरी का पार्ट है ना, तो ब्रिटिश के अंदर कौन सा पार्ट नहीं था, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 95, दैट इज़ द जुडिशियल सुप्रीमेसी, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एवी डाइसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये पार्ट नहीं है, जुडिशियल सुप्रीमेसी पार्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लेजली किश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द सैम्पलिंग, दैट इज़ क्या प्रॉब्लम है सैम्पलिंग के अंदर, तो सभी है, मिसिंग एलिमेंट है, फॉरेन एलिमेंट है, डुप्लीकेट है, ग्रुप क्लस्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ द डिपार्टमेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट रिकंसिल द लाइन ऑफ अथॉरिटी विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। बट 97 में नॉट एडवांटेज बताया, तो इट एन्जॉय ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स फंक्शनिंग, सो इट एन्जॉय ऑटोनॉमी एंड flexibility in its functioning, that is not part of that. Which of the following focuses research related to the specific subject of focus and concentrate on the certain particular component, so it is middle range theory. Which of the following is wrong concern International Monetary Fund, so 99 का आंसर D, the board of governor IMF consists of 2 governor and 1 alternative governor, ठीक है। In the Union Public Service Commission, X was appointed as a chairperson and now the 2 member हैं Y and Z, were the appointed by 8 नवंबर, तो ये X, Y और Z की बात कर रहा था, ठीक। तो ये 2018 का ही पेपर है, अगेन डिस्कस किया है हमने थोड़ा बहुत, तो इसको देख सकते हैं आप, MCQs नहीं है।